چلو سیکھے قرآن، چلو سیکھے قرآن، چلو سیکھے قرآن۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ آج ہماری تجوید القرآن کورس کی 7th کلاس ہے، تو سٹارٹ میں ہم قرآن کریم کی ایک فضیلت پڑھتے ہیں کہ تلاوت کلام پاک کے کیا فضائل ہیں۔ آج بھی ہم ایک فضیلت سنتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2926 عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرب عز وجل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول الرب عز وجل، اللہ رب العزت فرماتا ہے ما شغلہ القرآن والذکر عن مسألتی، کہتے ہیں جس شخص کو قرآن اور میرا ذکر اتنا مشغول کر دے، فرمایا کہ وہ ذکر اور قرآن میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے، بزی ہو جاتا ہے قرآن پڑھنے میں، قرآن سیکھنے میں، قرآن سمجھنے میں، وہ اللہ عز و جل سے دعا نہیں کر سکتا، وہ مانگ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، اللہ تعالیٰ کے کلام کی یعنی قرآن مجید کی فضیلت تمام کلاموں پر اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی فضیلت مخلوق پر ہے۔ تو قرآن کریم پڑھنا، قرآن کریم کے علوم میں مشغول رہنا، یہ بھی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور اس سے الحمدللہ عز و جل جو دعائیں ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگ سکتے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت جو لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی زیادہ ان اشخاص کو عطا فرماتا ہے، ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو قرآن میں اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم کے علوم کو سیکھنے کے لیے اپنی دن و رات محنت کرنی چاہیے۔ تو آج جو ہمیں سبق پڑھنا ہے، کل ہم نے پڑھے تھے آپ کے سامنے ساکن حروف پڑھا تھا، حروف مدہ پڑھے تھے، حروف لین پڑھے تھے۔ آج ہمیں ایک اور کنسیپٹ پڑھنا ہے جن کو بولتے ہیں ہم کھڑی حرکات، جن کو ورٹیکل حرکات کہتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے حرکات پڑھی تھی، وہ کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ اب ہمارے پاس نیا کنسیپٹ ہے، وہ ہے کھڑی حرکات۔ تو کھڑی حرکات کس کو کہتے ہیں؟ کھڑی حرکات کہتے ہیں کھڑا زبر جو یہ دیا ہوا ہے، اسی طرح کھڑی زیر، اور اس طرح الٹا پیش، تو ان کو کہتے ہیں کھڑی حرکات۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کہتے ہیں کھڑی حرکات۔ یہ جو کھڑی حرکات ہیں، کھڑی حرکات حروف مدہ کے برابر ہوتی ہیں، ایکویلنٹ ہوتی ہیں۔ کھڑی حرکات جو ہے یہ حروف مدہ کے برابر ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا حروف مدہ آپ کو پڑھائے تھے، حروف مدہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ایک الف تک کھینچے جاتے ہیں، تو یہاں بھی ایک الف تک ان کو کھینچیں گے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس حروف مدہ ہے، ہمارے پاس کھڑی حرکات ہے، با کھڑا زبر با، با کھڑا زبر با کا ساؤنڈ کس کے برابر ہے؟ با الف زبر با کے، یعنی کھڑی حرکات کا جو ساؤنڈ ہے وہ ایکویلنٹ ہوتا ہے حروف مدہ کے برابر۔ تو کھڑی حرکات با کھڑا زبر با کا ساؤنڈ کس کے برابر ہے؟ با الف زبر با کے۔ اس طرح دوسری کھڑی حرکات ہے با کھڑی زیر بی، تو یہ کس کے برابر ہے؟ با یا زیر بی، حروف مدہ کے برابر ہے، یعنی یا مدہ کے برابر۔ با یا زیر بی میں یا مدہ ہے، با الف زبر با میں الف مدہ ہے۔ اس طرح با الٹا پیش بو، یہ برابر ہے با واو پیش بو۔ تو کھڑی حرکات کس کے برابر نکلی؟ کھڑی حرکات حروف مدہ کے برابر ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کون سی کھڑی حرکت کس حروف مدہ کے برابر ہے۔ تو یہاں پہ کھڑی حرکت میں سے کون سے ہے؟ کھڑا زبر ہے، تو کھڑا زبر با کھڑا زبر با برابر ہے با الف زبر با کے۔ تو با الف زبر با میں کون سا حروف مدہ ہے؟ الف مدہ، اس لیے ہم کہیں گے کھڑا زبر جو ہے یہ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے۔ اس طرح با کھڑی زیر بی، یہ کس کے برابر ہے؟ با یا زیر بی میں کے برابر۔ تو با یا زیر بی میں کون سا حروف مدہ ہے؟ یا مدہ، یہ نا یا مدہ، اس لیے ہم کہتے ہیں کھڑی زیر جو ہوتی ہے وہ یا مدہ کے برابر ہوتی ہے، یا مدہ کے ایکویلنٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح با الٹا پیش بو، یہ کس کے برابر ہے؟ با واو پیش بو کے، با الٹا پیش بو برابر ہے با واو پیش بو کے۔
बा वाव पेश बू में कौन सा हुर्फ मदा है? वाव मदा, क्योंकि वाव सख्त से पहले पेश है, तो वाव मदा है। तो हम कह सकते हैं कि उल्टा पेश जो है वो वाव मदा के बराबर होता है। तो कंक्लूजन क्या निकला? खड़ा जबर अलिफ मदा के बराबर, खड़ी जेर या मदा के बराबर, उल्टा पेश वाव मदा के बराबर। जब ये बराबर है, हुरूफ मद्दा के बराबर है, अलिफ मद्दा के बराबर, वाव मद्दा के बराबर या मद्दा के बराबर, तो आप इनको पढ़ा भी वैसे ही जाएगा। पढ़ने का तरीका क्या होगा? खड़ी हरकत को भी हुरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जिस तरह हम खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर पढ़ते थे, इसी तरह ये हुरूफ मद्दा को जिस तरह हम एक अलिफ तक पढ़ते थे, और खड़ी हरकत को भी क्या पढ़ेंगे हम? एक अलिफ के बराबर सबको। मिसाल हमें पढ़ना है बा खड़ा जबर बा, तो बा में हम एक अलिफ तक खींचेंगे। तो एक चीज हमें आगे जरूरत पड़ेगी, वो आपको याद रखना है, वो ये कि जिस तरह मैंने कहा खड़ा जबर किसके बराबर निकला? अलिफ मद्दा। खड़ी जेर किसके बराबर निकली? या मद्दा के बराबर। तो उल्टा पेश किसके बराबर निकला? वाव मद्दा के बराबर। ठीक है, खड़ा जबर अलिफ मद्दा के बराबर, खड़ी जेर या मद्दा के बराबर, उल्टा पेश वाव मद्दा के बराबर। आप ये याद रखिएगा, ये हमें आगे जरूरत पड़ेगा जब हम इंशाल्लाह मद पढ़ेंगे। आगे हमें और कुछ मद की किस्म पढ़नी है, तो वहां पे ये जरूरत लगेगा। तो आप इतना याद रखेंगे, अगर कहीं पे खड़ी हरकत आती है तो उनको आप हरूफ मद की तरह ट्रीट करेंगे कुरान पढ़ते हुए। हाँ, जो मैंने पहले बयान की वो हदीस कुदसी थी। अब कोई कहेगा, क्वेश्चन आया भी है कि जब दोनों बराबर हैं तो फिर हमें क्यों इन खड़ी हरकत की जरूरत है? तो ये चीजें आपको ग्रामर ग्रामर में क्लियर हो जाएंगी। आप अरबिक कोर्स देखें, जो उम्मीद है आरिफ सर ने वहां पे ये एक्सप्लेन कर दिया होगा। यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस चीज को अभी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है वो है कलकला। मैंने पहले ही कहा था साकिन हुरूफ की एक अहमियत होती है, यहाँ भी साकिन से रिलेटेड एक हमारे पास एक कंसेप्ट है। साकिन को आप याद रखिए, कल हमने पढ़ा, साकिन उस हर्फ को कहते हैं जिस पर क्या होनी चाहिए? क्या होती है? जज्म होती है। साकिन हर्फ को कैसे पढ़ा जाता है? अपने से पहले मुतहरिक हर्फ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। अब हमें नया कंसेप्ट पढ़ना है, कलकला। कलकला का माना होता है जुम्बिश। जुम्बिश मीन्स वाइब्रेट होना, कुछ चीज वाइब्रेशन सी होना, वाइब्रेट हो जाना, या हरकत यानी कि मूवमेंट होना। तो इसका मतलब क्या होता है? कलकला में क्या होता है? हम हरूफ से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं वो किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं? हरूफ से। दूसरी बात आप याद रखिए, मैंने जब तजवीद की डेफिनेशन आपको पहले ही दिन बताई थी, तजवीद क्या होती है? तजवीद होती है मखारिज प्लस सिफात। ये आप डेफिनेशन हमेशा याद रखिए। तो मखारिज हमने पढ़े, मैंने कहा तो मखारिज तो मैं पहले ही पढ़ाऊंगा। अब आगे जो चीजें हमें आएंगी उनमें से मैक्सिमम चीजें सिफात होंगी। इसी तरह जिस तरह मैंने कहा था ना, मखारिज से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कुछ हरूफ को, तो कुछ को हम सिफात से करते हैं। तो हरूफ की एक सिफत ये कलकला भी है, यानी कुछ हरूफ में ये सिफत पाई जाती है कि उनमें कलकला होता है, यानी जुम्बिश होती है, हरकत जैसी होती है, जिसका मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड। साउंड वापस आता है, इको जैसा हो जाता है। तो ये किन हरूफ में होता है? ये 5 हरूफ में होता है, जिनको हम हरूफ कलकला कहते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है, उनको कहते हैं हरूफ कलकला। ये 5 है, वो कौन कौन से हैं? कौफ, प, बा, जीम, दाल, इनको कहते हैं हरूफ कलकला। इनको हम याद रखने के लिए एक निमोनिक है, वो है कुतुबो कुतुबो जद्दिन। अगर हम ये याद रखें कुतुबो जद्दिन, इसमें ये 5 के 5 हरूफ आ जाएंगे, कौफ, तौ, बा, जीम, दाल। तो इन हरूफ में क्या होगा? इन हरूफ में कलकला होगा। कलकला का मतलब क्या होता है? जुम्बिश से होगी हरकत, यानी जब इनको हम पढ़ेंगे मखरज में जुम्बिश जैसी होगी, वाइब्रेशन जैसी होगी। ठीक है, यानी साउंड वापस आता हुआ दिखाई देगा। मिसाल में कहूंगा, हम पढ़ेंगे हमजा कौफ जबर आप, आप, इसी तरह आप, अब, आज, अद। इन 5 हरूफ में क्या होता है? कलकला होता है, यानी हमें आवाज इको जैसी होती दिखाई दे रही। डिले नहीं होता है इसमें, डिले नहीं करना है। बाज लोग ऐसे करते हैं आप, तो ये डिले है, गलत है। इस तरह आप डिले नहीं करना है, बल्कि साइमल्टेनियसली इसकी आवाज जो है ना बाउंस होनी चाहिए। आप, आप, अब,
अज, अद। तो ये याद रखेंगे आप, इन ही 5 हुरूफ में जो है ना कलकला होगा। लेकिन कलकला जो है ना इन हुरूफ में हमेशा होगा, इन 5 हुरूफ में। लेकिन हमें ये याद रखना है कि कभी कलकला जो है ना वो दिखता नहीं, वो जाहिर नहीं होता है, कभी जाहिर नहीं होता है, लेकिन कभी खूब जाहिर होता है, खूब क्लियरली हमें दिखता है, क्लियर होता है, क्लियरली हमें साउंड आता वापस दिखेगा, कभी कभी नहीं दिखेगा। तो क्लियरली कब दिखेगा? जब यही 5 हुरूफ साकिन होंगे। क्या होंगे? ये 5 हुरूफ जब साकिन होंगे तब हमें कलकला क्लियरली इनमें नजर आएगा। तो साकिन का मतलब आपको पता है, उनके ऊपर क्या होगी? जज्म होगी। जैसे इसके ऊपर जज्म अभी मैंने दी है, तो यहाँ पे हम अप आए, अप, अब, अज, अद। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ये हरूफ जब साकिन होंगे तब कलकला खूब दिखेगा। अगर साकिन नहीं होंगे, इन पे हरकत होगी, इन पे और कुछ होगी, उस वक्त भी कलकला होगा, वो माइन्यूट होगा, वो ज्यादा दिखेगा नहीं। तो दूसरी बात मैंने आपको कही कि इन ही 5 हरूफ में कलकला होगा, इनके अलावा हम किसी हरूफ में कलकला नहीं करेंगे। मगर क्या होता है, हम गलतियां करते हैं, कभी कभी हमें पढ़ना होता है अलहम्दु, हम करते हैं अलहम्दु, अल, हम लाम में कलकला करते हैं। हमें पढ़ना होता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अनअमता को हम क्या पढ़ते हैं? अनअमता, अन नहीं करना है, अनअमता, क्योंकि वो हुरूफ कलकला नहीं है, ना लाम है ना नून है। तो जो हुरूफ कलकला नहीं होगा उनमें हम आवाज को हिलने नहीं देंगे, जुम्बिश नहीं होने देंगे, हरकत नहीं होनी चाहिए, और कोई साउंड वापस आने नहीं देंगे। तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स पे आता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दी है, यहाँ पे हमजा क जबर अक, वाव जबर व, अक व, मीम पेश मु, अक व मु। ऐसे ही इसमें तो में कलकला होगा, शप रहू ये हुर्फ कलकला है। सुबहाना इसमें किस में कलकला होगा? बा में, क्योंकि कौफ तो बा जीम दाल। वजह का इसमें जीम में कलकला होगा, क्योंकि जीम यहाँ पे हुर्फ कलकला है। रददना दूसरे दाल में कलकला खूब होगा, क्योंकि ये साकिन, ये वाला दाल। ठीक है। अब आते हैं प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस से पहले मैं आपको एक और कायदा बताऊं। कभी कभी हमजा भी साकिन होता है। हमजा साकिन किसको कहेंगे? जिस हमजा पे ऊपर जज्म होगी, जैसे ये हमजा है। या ऐसे भी लिखा जाएगा, अलिफ के ऊपर जज्म होगी तो वो भी हमजा बन जाता है। ये मैंने आपको शायद पहले ही लेक्चर में बता दिया है। तो इन हमजा साकिन में हमें झटका देना है। अभी तक मैंने पीछे कहा था हरकत में भी झटका नहीं देना है, हुर्फ मद्दा में भी झटका नहीं देना है, हुर्फ लीन में भी झटका नहीं देना है। झटका अभी तक किसी जगह हमें नहीं देना था, किसी जगह भी हमें सडन पॉज नहीं करना था। अब हमें आज के बाद आपको याद रखना है कि सडन पॉज कहाँ पे करना है, झटका कहाँ देना है? हमजा साकिन में झटका देना है। हमजा साकिनों को आप याद रखेंगे, हमजा साकिनों में झटका देंगे आप। जब भी हमजा के ऊपर जज्म होगी यानी सुकून होगी तो उसको हम झटका देंगे। कैसे पढ़ेंगे? हमजा, हमजा जबर अ। अब हम सडनली आवाज को रोकेंगे। हमजा, हमजा जेर ई। इसी तरह हमजा, हमजा पेश ओ। इस तरह हमजा, हमजा जेर ई, 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 आ ओ, सॉरी, आ ई उ। यहाँ पे झटका लगेगा। ठीक है। सिर्फ आप हमजा साकिन में झटका देंगे, इसको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। अब आते हैं, हमने मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हैं। अब आपको देखना है कि किस में कलकला करना है, किस में नहीं करना है। आपको किस किस में करना है? कौफ तो बा जीम दाल, जहां जहां भी साकिन होगा वहां पे कलकला खूब जाहिर करना है। जैसे हमजा ता जबर, इसको आप पढ़ेंगे अत, इसको अत नहीं करेंगे, अत, इसको इत, उत। अब ये तो जो है ये हुर्फ कलकला है, तो इसको पढ़ेंगे अतो, ये तो, ओतो। अब जा है, जा हुर्फ कलकला है नहीं है, हम पढ़ेंगे अज, इज, उज। अब जाल है, जाल हुर्फ कलकला है नहीं है, हम पढ़ेंगे आज, इज, उज। अब ज़ा है, ज़ा हुर्फ कलकला है नहीं है, अब, इज, उज। अब सा है, सा, सा हुर्फ कलकला है नहीं है, कौफ तो बाजिम दाल में सा नहीं है, हम पढ़ेंगे आज, इज, उस। सीन देखेंगे, सीन है हुर्फ कलकला में, इन 5 हुर्फ में नहीं है, कौफ तो बाजिम दाल में नहीं है, हम पढ़ेंगे इसको, यानी इसको हम आवाज वापस नहीं लौटने देंगे, हम पढ़ेंगे अस, इस, उस। इस तरह सौद है हमारे पास, क्या है? सौद। सौद हुर्फ कलकला में है नहीं है, इसमें भी कलकला नहीं होगा, इसको पढ़ेंगे हम अस, इस, और उस। अब दाल है, बताइए दाल है कलकला में, आप इस पर गौर करें। इन 5 हुर्फ में दाल है, औ तो बा जीम दाल, हाँ है, तो यहाँ पे कलकला होगा, हम पढ़ेंगे अद, इद, उद। अब दौद है, दौद नहीं है हुर्फ कलकला में, हम पढ़ेंगे अब, इद, उद। ठीक है। अब हमारे पास काफ है, काफ, ये वाला काफ है हुर्फ कलकला में नहीं है, ये वाला काफ भी नहीं है कहीं पे, तो हम पढ़ेंगे अत,
यानी इसको अक नहीं करेंगे। अक, आपको मिसाल के तौर हम पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर, बाज मुअज्जिन जो होते हैं ना अजान पढ़ते वो पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, अकबर नहीं होगा, अकबर, अकबर, अक होगा यहाँ पे, ठीक है, यानी यहाँ पे कलकला नहीं होगा। इस तरह इक, इस तरह उक। अब कौफ है, कौफ हुरूफ कलकला है या नहीं, जरा देखो, कौफ पहला ही हुरूफ कलकला में से, तो इसको हम कलकला करेंगे, हम पढ़ेंगे आप, एक, ओक। एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, मिसाल आप पढ़ते हैं लक़द खलक़नल इंसान, खलक में कौफ है, लक़द में दाल है, दोनों पे कलकला होगा। इस तरह है ओक, यहाँ पे भी कलकला होगा। अब हा है, क्या हा हुरूफ कलकला में से है, नहीं है, हम पढ़ेंगे हमजा, हा जबर, आह, आह, आह नहीं करेंगे आप, इस तरह हमजा हा जेर ई, यानी इसको एह, एह नहीं करना है, एह, क्या करना है, एह। हाँ एह, एह में भी कलकला नहीं होगा, यानी एह दिनस नहीं पढ़ेंगे, एह दिनस, इस तरह हमजा हा पेश ओ, ओ में नहीं होगा कलकला, हा में होगा, नहीं होगा, हम पढ़ेंगे आह। अच्छा, इस इन जो है ना, मैंने आपको पहले दिन बोला था, अगर किसी हर्फ का मखरज मालूम करना हो उसके पहले क्या लगाएंगे आप, हमजा साकिना लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको मखरज भी करेक्ट हो जाएंगे अगर इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। हमजा हा जबर आह, आह, हा भी निकलेगा दुरुस्त, एह, ओह, मगर कलकला इसमें भी नहीं होगा। अब हमजा साकिना यहाँ पे आ गया, जरा बताइए इसको कैसे पढ़ेंगे, ये मैंने लिखा है नीचे, हमजा साकिना को हमेशा झटका देकर पढ़ेंगे, हमजा, हमजा जबर आ, ई, ओ, ठीक है। आप आइन के साथ मिलाएंगे तो आइन है, और फिर कलकला नहीं, हम पढ़ेंगे आ, आ। हम क्या करते हैं, हमें पढ़ना होता है ला अबुदु, हम पढ़ते हैं अबुदु, अबुदु, आइन को हिलाते हैं, हिलाना नहीं है, आइन, अबुदु, क्योंकि ये आइन हुर्फ कलकला नहीं है, ये वाला आइन नहीं है हुर्फ कलकला, इस तरह ये, और इस तरह इन्ना अतैना, 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 ठीक है, अतैना अगर किया तो वो गलत है। ऐसे ही आख, एक, ओख, इसमें भी कलकला होगा, खा में, जरा बताइए, नहीं होगा। गईन में होगा, गईन में भी नहीं होगा, आग, एक, उग। गईन में क्या करते हैं, गईन में भी बाज लोग कलकला करते हैं, उनको पढ़ना होता है मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब, तो वो पढ़ते हैं मा अगना, अगना पढ़ते हैं, हालांकि अगना पढ़ना है, अगना, अगना, अगना नहीं, अगना। गईन पे हिलाएंगे नहीं सुकून, क्योंकि गईन है ही नहीं उर्फ कलकला, ठीक है। अब आएंगे नेक्स्ट पे, नीचे वाला लास्ट वाली लाइन, जो ये है, लास्ट वाली लाइन जो है वो है बा है, इसमें बताइए इसमें कलकला होगा या नहीं, बा में, बा है उर्फ कलकला में से, हाँ है, तो आप पढ़ेंगे हम अब, इब, ऐसी, उब, इनको। मीम है उर्फ कलकला, मीम नहीं है, हम पढ़ेंगे आम, इम, ओम, ऐसी इनको पढ़ना है हमें। हम मीम में भी बाज लोग कलकला करते हैं, उनको पढ़ना होता है अन अमता, तो अन अमता, अमता कहते हैं। तो इन चीजों को आप याद रखना है। मैंने बताया कलकला, कलकला मतलब होता है जुम्बिश या हरकत, यानी कि हिलना, वाइब्रेट होना। वाइब्रेट कौन होगा, यहाँ पे हम हुरूफ के साथ ही जो भी हम पढ़ेंगे वो हुरूफ के मुतालिक पढ़ेंगे, यहाँ पे वाइब्रेट हुरूफ ही होंगे, यानी हुरूफ मखरज में हरकत जैसी होगी, वाइब्रेशन जैसी होगी, जिसकी वजह से हमें क्या लगेगा, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड लगेगा, यानी साउंड वापस आ रहा है, साउंड एक किस्म का रिपीट हो रहा है, रिपीट तो नहीं होगा, हम कहेंगे बाउंस हो रहा है एक किस्म से साउंड, ठीक है। तो ये किन हुरूफ में होता है, 5 हुरूफ में होता है। इन 5 हुरूफ में कब होता है, हमेशा होता है, लेकिन जाहिर खूब तब होगा जब ये हुरूफ साकिन होंगे, ठीक है। तो ये 5 हुरूफ कौन से हैं, कौफ, तौ, बा, जीम, दाल। फिर मैंने एक और कंसेप्ट बताया हमजा साकिना का, तो हमजा साकिना का ये कंसेप्ट क्या है, हमजा साकिना को हमेशा झटका देकर पढ़ेंगे, हमजा साकिना को हमेशा क्या करेंगे, झटका देकर पढ़ेंगे। आज मैंने कवायद में से इतना ही रखा है, आगे मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ, एप्लीकेशन। अभी तक जितने रूल्स किए, जिस तरह मैंने आपको कल बोला था ना कि जितने रूल्स आपने पढ़े हैं उनको एप्लीकेशन, उनको प्रैक्टिस आप करें। 38 अपनी जो है ना, आप वाइट बोर्ड यूज मत करें भाई, आप छेड़छाड़ मत करें स्क्रीन के साथ, आप चुप करके सुनो।
38। अच्छा जी, हमारे पास मैंने कहा था जितना आपको कुरान याद है उस पर आप अप्लाई कीजिए। मिसाल अल्हम्दु बिस्मिल्लाह से हम शुरू करेंगे, तो बिस्मिल्लाह शरीफ हमारे पास है। इसके हम ग्रामेटिकल ये तजवीद में इसका एनालिसिस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह में सीन है, इसको ये हुरूफ सफीरिया है, इसको सीटी निकालेंगे, बिस्मिल निकालेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह मिल्लाह पढ़ेंगे, इसको हम मजहूल नहीं पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह मिल्लाह नहीं, मिल्लाहिर्रहमा, इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमा। शायद मैंने आपको बताया था रॉ के ऊपर भी जब जबर हो उसको पुर पढ़ा जाता है। अभी आप याद रखिए, रॉ के ऊपर जब जबर होगी वो भी पुर होगा। रहमानिर्रहीम, यहाँ भी रॉ पुर होगा, ठीक है फिलहाल। और आप इसमें देखिए खड़ी हरकत, खड़ी हरकत किसके बराबर होती है? हुर्फ मद्दा के बराबर। तो खड़ा जबर किस हुर्फ मद्दा के बराबर होता है? अलिफ मद्दा के बराबर। तो हम इसको रहमा, इसको एक अलिफ तक खींचेंगे। इस तरह बिस्मिल्लाह, यहाँ भी एक अलिफ तक खींचेंगे क्योंकि ये भी अलिफ मद्दा है, क्योंकि खड़ी हरकत किसके बराबर है? खड़ा जबर अलिफ मद्दा के बराबर। इस तरह है निर्रहीम, यहाँ देखो या साकिन से पहले जेर है, ये देखो या साकिन से पहले जेर है, तो अब क्या होगा यहाँ पे? या मद्दा। तो हुरूफ मद्दा कोई भी हो उसको एक अलिफ तक खींचेंगे, तो यहाँ पे एक अलिफ खींचेंगे पहले, फिर रहमानिर्रहीम। फिर जहाँ निर्रहीमी, तो जब इस पे वक्त करेंगे तो ये बनेगा निर्रहीम, यहाँ पे दूसरी मद फिर बनेगी, वो अभी आपने नहीं पढ़ी। तो इतना आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपने तीन कंसेप्ट सीखे। एक तो आपको अलिफ मद्दा मिल गया दो जगह, और आपको या मद्दा एक जगह मिल गया, और रॉ को पढ़ना है आप, हरकत को मारूफ पढ़ना है। इसी तरह अल्हम्दु, जहां भी कोई हर्फ साकिन हो आपको देखना है वो हुरूफ कलकला तो नहीं। अगर वो हुरूफ कलकला हुआ तो आपको उसको कलकला करना है, अगर नहीं हुआ तो उसको आपको हिले नहीं देना, यानी अल। अब अलहम्दु आप पढ़ोगे, अल अलहम्दु नहीं, अल में गलत होगा क्योंकि लाम हुरूफ कलकला नहीं है। अल हम हम, मीम में भी कलकला नहीं होने देंगे, और हा कहां से निकालेंगे? हल्के दरमियान वाले हिस्से से। अल्हम्दु, अल्हम्दु, दो पढ़ेंगे, अल्हम दो नहीं के दो, झटका वटका नहीं देंगे। अल्हम्दु लिल्लाहि। अब यहाँ पे फिर आ रहा है अलिफ मद्दा, क्योंकि खड़ी हरकत जो है ना ये हुर्फ मद्दा में से अलिफ मद्दा के बराबर है। खड़ा जबर, खड़ा जबर हुर्फ मद्दा में से अलिफ के मद्दा के बराबर है। तो लिल्लाहि, यहाँ पे जेर को मारूफ पढ़ेंगे, जेर को हम न झटका देंगे न खींचेंगे, बल्कि हम नॉर्मल वॉइस में पढ़ेंगे। रब्बिल आलमीन, और रब, मैंने फिर बोला रॉ के ऊपर जब जबर होगी तो इसको पढ़ा जाएगा पुर। रब्बिल आलमीन, आलमीन में खड़ी हरकत, और रब्बिल में यहाँ पे लाम साकिन है, तो इसमें कलकला नहीं करेंगे, बल्कि इसको रब्बिल, इसका सुकून हम हिलने नहीं देंगे। इस ये जो साकिन है ना इसको हिलने नहीं देंगे, क्योंकि हिलाना सिर्फ वहां है जहां उस पर कलकला हो। आलमीन, आइन को भी दुरुस्त निकालने की कोशिश करनी है कि यह हालत के दरमियान वाले हिस्से से ज्यादा होता है। आलमीन, मीम याजिर मी, यहाँ पे या मदा, ठीक है, या मदा है यहाँ पे, और ये बनेगा रब्बिल आलमीन। तो यहाँ पे एक अलिफ खींचेंगे फिलहाल, जब वक्फ करेंगे तो फिर ज्यादा खींचेंगे, वो मैं अभी आपको मैंने नहीं बताया। इस तरह फिर और रॉ में रॉ पुर होगा क्योंकि रॉ के ऊपर जबर है। रहमानिर्रहीम, यहाँ भी रॉ पुर होगा। यहाँ रहमा में फिर अलिफ मदा खींचेंगे एक अलिफ। रहमानिर्रहीम, यहाँ या मदा है क्योंकि यहाँ साकिन से पहले जेर है। अब चलेंगे नेक्स्ट की तरफ, मालिकी यौमिद्दीन। ये मैं सिखा रहा हूँ आपको कि आपको कैसे करना चाहिए, जितना आपको याद है उसको कैसे आप एनालाइज करेंगे कि मैं दुरुस्त पढ़ रहा हूँ या नहीं। आगे मैं इसी प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, आज मैंने सोचा कि आज आपको कह रहा हूँ थोड़ी प्रैक्टिस। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी में अलिफ मद्दा, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा ये अलिफ मद्दा के बराबर क्यों है। मालिकी, मालिके नहीं, मालिकी काफ जेर की, यौमिद्दीन, यौ देखो यहाँ पे जरा कमेंट में लिखो यहाँ पे क्या है। यहाँ वाव साकिन से पहले जबर है तो क्या होगा? यहाँ पे चैट में लिखो आप, मैं भी देखूं कि कुछ याद है कि नहीं। अलिफ मद्दा नहीं है ये, या वाव साकिन से पहले जबर है, ये वावलीन है माशाअल्लाह। हाँ ये वावलीन है, तो लीन को कैसे पढ़ना है? हुर्फ लीन को, हुर्फ लीन को हम कैसे पढ़ते हैं? नरमी के साथ, हुर्फ लीन को नरमी के साथ, यौमिद्दीन। अब ना खींचेंगे ना याद करेंगे, यहाँ यौमिद्दीन, दाल या जेर दी देखिए अब, दाल या जेर दी, ये जो है दाल या जेर दी में क्या है? या मद्दा है क्योंकि या सक से पहले जेर है, तो यहाँ पे एक अलिफ खींचेंगे, यौमिद्दीनी।
تو जब यहाँ पे वक्फ करेंगे ये बनेगा यौमिद्दीन, इसको ज्यादा खींचेंगे, अभी वो कायदे मैंने आपको नहीं बताया। चलिए आगे चलते हैं। इय्याका, इय्याका नअबुदु, नअबुदु में आइन साकिन है तो ना नहीं करना है, नअबुदु नहीं पढ़ना है, नअबुदु यानी इसमें कलकला नहीं होगा। व इय्याका नस्तईन, अब नस्तईन में भी अगर देखेंगे आप, यहाँ पे नस्तईनु अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे या मद्दा है, आइन या ज़िर या, क्योंकि या सख्त से पहले ज़ेर है। आगे चलते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना में देखो, इहदिना में हा साकिन है, हा साकिन में हमें ये कलकला नहीं करना है क्योंकि हुरूफ कलकला नहीं है, इह नहीं पढ़ना है इहदिनस, बल्कि इहदिनस, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल में देखेंगे आप सौद हुरूफ मुस्तालिया है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे हुरूफ मुस्तालिया। मुस्तकीम, मुस्तकीम में कौफ हुरूफ मुस्तालिया है, इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। कौफ या ज़रक़ी ये या मद्दा है, तो मुस्तकीम एक अलिफ तक यहाँ पे खींचेंगे। इस तरह सिरातल लज़ीना, साद हुरूफ मुस्तालिया तो पुर होगा, ता हुरूफ मुस्तालिया तो पुर होगा, तो सिरात। अगर इसको हमने सिराता पढ़ा तो ये बिल्कुल गलत है, जिस तरह उमूमी हमारे लोग पढ़ते हैं सिरातल लज़ीन, सिरा नहीं, सिरात, सिरातल लज़ीना। ज़ीना में अगर देखेंगे आप यहाँ पे ज़ाल या ज़ी, ये कौन सा हुरूफ मद्दा है, या मद्दा। फिर है अन अमता, अन अमता में नून साकिन है, तो नून साकिन है लेकिन इसमें बाद लोग कलकला कर लेते हैं, तो कलकला यहाँ पे होगा नहीं होगा, कलकला नहीं होगा, तो अन अमता पढ़ना है, अन अमता नहीं, अन अमता। फिर है अलैहिम, अलै लाम या ज़बर लै, यहाँ पे फिर है, यहाँ पे या साकिन से पहले जबर है, या साकिन से पहले जबर हो तो क्या होता है, यालीन होता है। तो यालीन में क्या करते हैं हम, यालीन को हम नरमी से पढ़ेंगे, यानी ना इसको खींचेंगे ना जड़ करेंगे। अलैहिम, लाई लाई, अलैहिम गैरिल मग़दूबि, गै, गैन या ज़बर गै, इसमें भी क्या है, या मद्दा है, यालीन है, सॉरी यालीन, क्योंकि या साकिन से पहले क्या है यहाँ पे, जबर है, तो यहाँ भी नरम, गैरिल मग़दूबि, गैन साकिन है, बाद इसको कलकला कर देते हैं लेकिन यहाँ कलकला नहीं होगा क्योंकि और कलकला नहीं है। मग़दूबि, दू, यहाँ भी देखो, यहाँ पे दाद वाव पे दू, वाव साकिन से पहले पेश है तो यहाँ पे क्या होगा, वाव मद्दा होगा, यहाँ भी एक हलिफ खींचेंगे। अलैहिम, यहाँ भी यालीन है, तो यालीन में क्या करेंगे हम, नरमी से पढ़ेंगे अलैहिम, यहाँ पे हम नहीं करेंगे अलैहिम, तो ये गलत होगा अगर अलैहिम पढ़ेंगे क्योंकि ये हुर्फलीन है, हुर्फलीन को खींचना ही नहीं है, सिर्फ खींचना किसको है, हुर्फ मद्दा। फिर है वलद्दॉल्लीन, यहाँ पे एक मद है जो अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, तो आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे हमें देखना है कि हमारी तजवीद किसी ठिकाने पे पहुंची है या नहीं पहुंची है, हम कुछ समझे हैं या नहीं समझे हैं। तो आज मैंने आपको 3 कंसेप्ट पढ़ाए, मैं थोड़ा सा पीछे से रिपीट करता हूँ। 2 कंसेप्ट पढ़ाए, एक में एप्लीकेशन, एक तो मैंने खड़ी हरकत पढ़ाई, खड़ी हरकत हुरूफ मद्दा के बराबर होती है, हुरूफ मद्दा जैसे अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा होते हैं, तो इस तरह खड़ी हरकत भी इन 3 हुरूफ मद्दा के बराबर होती है। खड़ा जबर होता है अलिफ मद्दा के बराबर, खड़ी ज़ेर होती है या मद्दा के बराबर, उल्टा पेश होता है वाव मद्दा के बराबर, यानी साउंड के पास। पढ़ने का तरीका क्या है इनको, जिस तरह खड़ी हरकत को एक अलिफ तक पढ़ते हैं इसी तरह हुरूफ मद्दा को, हुरूफ मद्दा को जैसे एक अलिफ पढ़ते हैं, खड़ी हरकत को भी एक अलिफ यानी 2 हरकत तक खींच कर पढ़ेंगे। फिर आगे जब हम रूल्स पढ़ेंगे, जो खड़ी हरकत के रूल्स होंगे जो वही हुरूफ मद्दा के होंगे, जो हुरूफ मद्दा के होंगे वही खड़ी हरकत के भी होंगे। यहाँ हम साउंड से डील करते हैं, हम स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जाते हैं, स्ट्रक्चर की तरफ अरबिक ग्रामर में हम पढ़ते हैं। चलिए जी, फिर मैंने आपको बोला कलकला, कलकला का माना होता है जुम्बिश होना, हरकत होना, वाइब्रेट होना, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड होना। तो हुरूफ कलकला में कलकला तो हमेशा होता है लेकिन जाहिर तब होता है, क्लियर तब होता है, क्लियरली सुनाई तब देता है जब हुरूफ कलकला साकिन हो। वो हुरूफ कलकला कौन है, वो 5 है, कौफ कौफ बाजीब दाल। और हमने साथ में एक बात पढ़ी, हमजा साकिन में हमेशा झटका देंगे, और मैंने आपको ये इसका तजवीद एनालिसिस कराया कि हम तजवीद के एतबार से इसको देखें। तो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सूरह इखलास को कर सकते हैं खुद प्रैक्टिस, तशहुद को कर सकते हैं प्रैक्टिस, आप सना जो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, तो वहां भी आप। चलिए शुक्रिया, आपको खुद भी जो है ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो जो आपको याद है, क्योंकि आखिरकार आपको कुरान शरीफ दुरुस्त पढ़ना है, नमाज दुरुस्त पढ़नी है, उनको आप आज ही से प्रैक्टिस करें। जो जो रूल हम पढ़ते हैं आप ढूंढा करें कि कहीं कहीं ये मिल रहा है मुझे यहाँ पे, खासकर अपने सलाह पे ये करें और तिलावत करने की कोशिश करें आज से आप, क्योंकि आप सीख रहे हैं, अब आपको गुनाह नहीं है, सीखते हुए आप सीखते भी जाएंगे और साथ साथ एनालिसिस भी करेंगे। हो सके तो रोजाना एक पेज पे कम अज कम प्रैक्टिस करें, अगर ज्यादा करेंगे तो ज्यादा ही फायदा है। आज फोन में भी कुरान शरीफ होता है, जब भी फ्री टाइम कहीं पे भी मिले
ویسے مل ہی جاتا ہے، ہم کہیں بھی بیٹھتے ہیں، کبھی بس اسٹاپ پہ بس کا انتظار کرنا ہے، کبھی گاڑی میں ہوتے ہیں، تو دیکھنے کی کوشش کی کہ جتنے میں نے رولز پڑھے، چلو میں دیکھتا ہوں کہ یہ رولز مجھے آتے ہیں یا نہیں آتے. یہاں سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.